آداب عرض ہے ناظرین، MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں غوث محی الدین۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 2 نئے معاملے منظر عام پر آنے کے بعد کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ہوئی 51۔ حکومت و انتظامیہ کی تشویش میں اضافہ، شہریان سے محتاط رہنے کی اپیل۔ اکشے تریتیہ اور پاڑوا ہوئے کورونا کی نظر، لاک ڈاؤن کے سبب سونے چاندی، الیکٹرانک اور دیگر اشیاء کی دکانیں رہی بند، کاروبار متاثر، تاجروں کو ملال۔ ہیتھوے MCN کے ڈائریکٹر وریندر سنگھ اور ان کی ٹیم نے بڑھایا ضرورت مندوں کے لیے مدد کا ہاتھ، 1000 افراد میں بانٹے گئے فوڈ پیکٹس، لاک ڈاؤن ختم ہونے تک مہم جاری رکھنے کا کیا عزم۔ اور مقدس ماہ رمضان کے پیش نظر مختلف اقسام کی پینٹ کھجوریں بازار میں دستیاب، مگر گزشتہ کی بنسبت اس سال دام ہے 2 گنا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ آج صبح مزید 2 خواتین کی رپورٹس کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ اس طرح اب شہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 51 ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ ہمارے شہر میں بھی کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد نے نصف سنچری پار کر لی ہے۔ گزشتہ دوپہر تک 47 افراد کے اس مرض میں مبتلا ہونے کی رپورٹ تھی، مگر اچانک رات میں 2 اور صبح میں 2 مریضوں کی رپورٹ کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ آج صبح جو 2 مریض اس کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں، ان میں آصفیہ کالونی کی ایک 51 سالہ خاتون اور سمتا نگر علاقے کی 35 سالہ خاتون کا شمار ہے۔ اس طرح سے اب تک 51 مریض کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 5 مریض جاں بحق ہو گئے، جبکہ 22 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے اور 24 مریضوں کا علاج سول ہاسپٹل اور گھاٹی ہسپتال میں جاری ہے۔ ناظرین، شہر کے 51 افراد کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ یعنی 9 مریض سمتا نگر علاقے کے ہیں۔ اس طرح یہ علاقہ اس مرض کے لیے ہاٹ اسپاٹ بن چکا ہے۔ ہمارے شہر میں سب سے پہلے سڈکو N1 کی ایک خاتون پروفیسر کورونا کی زد میں آئی تھی، مگر خوش قسمتی سے ان کے رابطے میں رہے سینکڑوں طلباء اور دیگر شہریان میں سے کوئی بھی اس مرض کے لیے پازیٹیو نہیں پایا گیا، مگر خاتون پروفیسر کے صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو جانے کے بعد کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں ایک کے بعد ایک کر کے اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ فیگر 51 تک پہنچ گیا، گو کہ ان میں سے 5 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں اور 22 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اب بھی 24 مریض سول ہاسپٹل اور گھاٹی دواخانے میں زیر علاج ہیں، اور چونکہ ہمارے شہر میں آج بھی 15 سے زائد یعنی 24 افراد کووڈ-19 سے متاثر ہیں، اسی لیے فی الحال ہمارے شہر کا ریڈ زون سے باہر نکلنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے شہر کے جو 51 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق سڈکو N سے ہے، جبکہ سڈکو N4 کے بھی 2 افراد اس مرض کی زد میں آئے تھے۔ اسی طرح کورونا سے متاثرہ مریضوں میں دیولائی کے 3، ساتارا کے 4، عارف کالونی کے 3، ٹاؤن ہال کا 1، قلعہ ارک کا 1، جلال کالونی کے 2، ہلال کالونی کے 4، بسم اللہ کالونی کے 2، آصفیہ کالونی کے 3، N11 یادو نگر کا 1، کراڑ پورہ کے 5، احباب کالونی کے 2، بائی پورہ کے 3، سمتا نگر کے 9، پدم پورہ کا 1، پڑے گاؤں کا 1 اور بھیم نگر بھاؤسنگ پورے کے 3 مریض شامل ہیں۔ لاک ڈاؤن کے سبب اکشے تریتیہ اور پاڑوا کے موقع پر تاجروں کا کاروبار بڑے پیمانے پر متاثر ہوا ہے، جس کا ان لوگوں کو بے حد افسوس ہے۔ ناظرین، ہندو مذہب کے مطابق اکشے تریتیہ 3.5 مہورتوں میں سے ایک مہورت ہے، اور اس موقع پر سونا، چاندی، مکان، نئی گاڑی خریدنا شبھ مانا جاتا ہے۔ اس طرح آج ہندو نئے سال کا آغاز عمل میں آیا،
जिसे पाड़वा कहा जाता है, और कोरोना वायरस का असर इन त्योहारों पर साफ पड़ता दिखाई दिया। नए साल के आगाज़ पर घरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक अशिया या दीगर अशिया की खरीदी को शुभ माना जाता है, मगर लॉकडाउन के सबब सभी दुकानें बंद रहीं, जिसकी वजह से न सिर्फ ताजिरों का कारोबार ठप रहा, बल्कि शहरियान को भी नई चीज़ों की खरीदी के बगैर ही ये त्यौहार मनाने पड़े। यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नाज़रीन, इन दिनों जो हालात हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं, लिहाजा अपना समाजी और अखलाक़ी फ़रीज़ा समझते हुए हैथवे MCN की जानिब से 1000 अफराद में फूड पैकेट्स तक़सीम किए गए। नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता एक माह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से सभी कारोबार ठप पड़े हैं और यौमिया उजरत पर काम करके अपने अफराद ख़ानदान के लिए रोज़ी का सामान करने वाले लाखों अफराद पर बेरोज़गारी की मार पड़ी है, जिसके सबब उन पर और उनके अफराद ख़ानदान पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। लिहाजा हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार ने इन ज़रूरतमंदों के दर्द को समझते हुए उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया और रोज़ाना 1000 अफराद में फ़ूड पैकेट तक़सीम करने का फ़ैसला किया, जिसका आगाज़ आज से किया गया। वीरेंद्र सिंह पवार रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल राजनगर स्लम बस्ती पहुँचे और वहाँ रहने वाले अफराद में फ़ूड पैकेट तक़सीम किए। इस मौके पर MCN न्यूज़ के चीफ़ एडिटर देव शेजुड़, संजय भारसाखड़े, गणेश गुट्टे, करण देशपांडे, विनोद सोलनार, केशव भोंबे, कृष्णा दुबे, सचिन चौहान और अभिजीत जोशी भी मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र बाज़ार में मुख्तलिफ़ अक़साम की पेंट खजूरें तो दस्तयाब हैं, मगर गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल उनकी कीमतों में दोगुना इजाफ़ा देखा जा रहा है। नाज़रीन, पेंट खजूर एक तवानाई बख्श फल माना जाता है और माह रमज़ान में इसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि खजूर से रोज़ा इफ्तार की ख़ास अहमियत बतलाई गई है और खजूर के कई तिब्बी फ़वाइद भी हैं। दिन भर का रोज़ा रखने के बाद जब रोज़ेदार पेंट खजूर से इफ्तार करता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है। थकान दूर होने का सबब उसमें मौजूद अज्जा हैं जो लाग़िर जिस्म को तवानाई बख्शते हैं। इंसानी जिस्म के इम्यूनिटी पावर यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़े के लिए भी पेंट खजूर बड़ी कारामद है। यही वजह है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़े के लिए तिब्बी माहिरीन अवाम को पेंट खजूर का इस्तेमाल करने का मशवरा देने लगे हैं। मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और आज बंदगान तौहीद ने दूसरा रोज़ा भी पूरा कर लिया। इसी मुनासिबत से बाज़ारों में मुख्तलिफ़ अक़साम की पेंट खजूरें फ़रोख्त की जा रही हैं, मगर लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल उनकी कीमतों में दोगुना इजाफ़ा हुआ है। इसके बावजूद लोग पेंट खजूरें ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता जो 1 किलो पेंट खजूर ख़रीदता था, इस साल वो अपनी जेब की गुंजाइश के मुताबिक पाव सेर या आधा सेर ख़रीद रहा है। हमने हमारी पूरी लाइफ में जो है तो ये भाव देखे नहीं, इतनी तेज़ी आई हुई भाव में जिसकी कोई गिनती नहीं। अब ये खजूर है, ये खजूर पिछले साल होलसेल में 45-50 रुपये का भाव था, चिल्लर में ये 60 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये बिक रही थी। आज ये होलसेल में जो है तो 105 रुपये का रेट है इसका, लाएगा तो 110-115 रुपये पड़ जाएगी। 120-140 बोले ग्राहक को तो ग्राहक भाग जा रहा, इतनी महंगाई आ गई। अंधारी में मुकीम गैर रियासती मजदूर लॉकडाउन के सबब होने वाली परेशानियों से बेजार आ चुके हैं और उन्होंने अपने वतन के लिए पैदल ही सफ़र शुरू कर दिया है। अंधारी गांव में ज़रई ज़मीनों से अदरक निकालने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से सैकड़ों मजदूर अपने अफराद ख़ानदान के साथ आए हुए थे, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन ने उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। 1 माह से बेरोज़गार होने के सबब उनके पास की जमा पूंजी भी पूरी खर्च हो गई है। हुकूमत की जानिब से राशन दुकानों पर जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उस अनाज से ये लोग महरूम हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ के राशन कार्ड नहीं हैं। लिहाजा ऐसे हालात से परेशान इन गैर रियासती मज़दूरों ने पैदल ही वतन लौटने के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया है और वो सामान की गठड़ियाँ सर पर उठाए, बच्चों को गोद में लिए
हज़ारों मील का सफ़र अब पैदल ही तय करना चाहते हैं। कोरोना वायरस नामी मर्ज के लाहक होने का खतरा होने के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने वाले म्युनिसिपल मुलाजिमीन को मुथियान विहार के साकिनान ने नोटों से बना हार पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। वाज़ेह रहे कि इन दिनों सारी दुनिया पर कोरोना वायरस का ख़तरा मंडला रहा है और हर पल इस मर्ज में अवाम के मुब्तला होने की खबरें आम होने लगी हैं। इस वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी कर रखा है, जिसके तहत सभी शहरियान अपने अपने घरों में महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर हेल्थ मुलाजिमीन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन, बिजली सप्लाई कंपनी के लाइनमैन, पकवान गैस एजेंसियों पर खिदमात अंजाम देने वाले एम्प्लॉइज़, म्युनिसिपल वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड में काम करने वाले अफसरान व मुलाजिमीन अपनी जान की परवाह किए बगैर शहरियान को सर्विस फराहम कर रहे हैं। क्रांति चौक इलाके में वाक़े मुथियान विहार के साकिनान ने आज उनके वार्ड को साफ़ सुथरा रखने वाले मुलाजिमीन को नोटों से बना हार पहनाया और उनका हौसला बढ़ाया। अहम बात तो ये है कि इस इस्तक़बालिया तक़रीब में भी उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा। लॉकडाउन के दरमियान किसानों ने खेत में उगाई फसल, जिसमें सब्जी तरकारियां और फल शामिल हैं, रास्त ग्राहकों को फ़रोख्त करके तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का कारोबार किया। वाज़ेह है कि अक्सर किसानों को ये शिकायत रहती है कि मार्केट कमेटी में फ़रोख्त के लिए लाई जाने वाली ज़रूरी पैदावार के उन्हें मुनासिब दाम नहीं मिलते। इसके बावजूद वो लोग मार्केट कमेटी में ज़रूरी पैदावार फ़रोख्त करने पर मजबूर थे, मगर कोरोना वायरस के सबब नाफिज लॉकडाउन ने किसानों के कई मसाइल हल कर दिए हैं। जाधववाड़ी मोंढा में जमा होने वाली भीड़ को कम करने की गर्ज से इंतज़ामिया ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी मंडियाँ क़ायम की, जिसके बाद किसानों ने अपने खेत में निकलने वाली सब्ज़ी तरकारियाँ और फल रास्त ग्राहकों को फ़रोख्त करना शुरू किए। इत्तला है कि 24 अप्रैल तक किसानों ने 1,50,178 किलो सब्ज़ियाँ और 2,42,843 किलो फल रास्त फ़रोख्त किए, जिनसे उन्हें 96,87,400 रुपयों की आमदनी हुई। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर तुकाराम मोटे ने दी। लॉकडाउन के सबब MP, UP और दीगर रियासतों में फंसे हुए रियासत महाराष्ट्र के तलबा और दीगर साकिनान को वतन वापस लाने के लिए ST कॉरपोरेशन के औरंगाबाद डेपो की जानिब से 100 बसें रवाना की जा रही हैं। ये इत्तला मुतल्लिक़ा महकमे से मौसूल हुई है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म हिंद ने अचानक मार्च महीने में पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ रियासतों में तालीम हासिल करने के लिए गए तलबा, मज़दूर, दीगर कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजिमीन जहाँ थे वहीं रुके रहे। मगर अब जैसे जैसे लॉकडाउन का वक्फ़ा लंबा होता जा रहा है, दीगर रियासतों में फंसे अफराद की बेचैनी में इजाफ़ा होने लगा है और सभी गैर रियासती अफराद अपने अपने वतन लौटने के लिए बेकरार हैं। इस ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की, जिसके बाद UP, MP और दीगर रियासतों में फंसे अफराद को अपने वतन वापस लाने के लिए ST कॉरपोरेशन औरंगाबाद डिवीज़न को भी 100 गाड़ियाँ तैयार रखने की हिदायत दी गई है, जिन पर जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करके उन्हें जरासीम से पाक किया जा रहा है। और जैसे ही हुकूमत की जानिब से उन्हें हिदायत मिलती है, ये गाड़ियाँ रियासत महाराष्ट्र के साकिनान को दीगर रियासतों से वापस लाने के लिए रवाना कर दी जाएंगी। मालीवाड़ा इलाके में सुकूनत पजीर आदिवासी गोंडी समाज के 60 ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खैर ख़वाह हजरात वहां पहुंचे और उन लोगों में किराना किट तकसीम किए। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि रास्ते के किनारे आदिवासी समाज के अफराद एक नेट लगाकर बैठते हैं और जड़ी बूटियां फ़रोख्त करके अपना गुजारा करते हैं। इस समाज की ख़वातीन रास्तों के किनारे खोपरा और सूखी खजूरें फ़रोख्त करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही आदिवासी गोंडी समाज के 60 ख़ानदान मालीवाड़ा इलाके में सुकूनत पजीर हैं, मगर लॉकडाउन के सबब उनका कारोबार बंद है। अब उनके पास की जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है और उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है।
اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے بعد شہر کے خیرخواہ افراد وہاں پہنچے اور ان خاندانوں میں کرانہ سامان اور دیگر لازمی اشیاء کے کٹ فراہم کر کے ان کی مدد کی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 2 نئے معاملے منظر عام پر آنے کے بعد کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ہوئی 51۔ حکومت و انتظامیہ کی تشویش میں اضافہ، شہریان سے محتاط رہنے کی اپیل۔ اکشے تریتیا اور پاڑوا ہوئے کورونا کی نظر، لاک ڈاؤن کے سبب سونے چاندی، الیکٹرانک اور دیگر اشیاء کی دکانیں رہی بند، کاروبار متاثر، تاجروں کو ملال۔ ہیتھوے MCN کے ڈائریکٹر ویریندر سنگھ اور ان کی ٹیم نے بڑھایا ضرورت مندوں کے لیے مدد کا ہاتھ، 1000 افراد میں بانٹے گئے فوڈ پیکٹس، لاک ڈاؤن ختم ہونے تک مہم جاری رکھنے کا کیا عزم۔ اور مقدس ماہ رمضان کے پیش نظر مختلف اقسام کی پینٹ کھجوریں بازار میں دستیاب، مگر گزشتہ کی بنسبت اس سال دام ہے 2 گنا۔ اسی کے ساتھ آج کا MCN اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک میں غوث محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔